इंसान को गले लगाए, अब हमें उनके घर जाके उनको गले लगाना है, हमें उनके घर जाके उनको असलियत बताना है और दोबारा अच्छे दिन लाना है देश में और हमारे बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बोली को यहीं पे विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं विनती करता हूं दीपादास मुंशी जी, भाई महादेव जोशी जी को कि मंच पे आ जाए। गोपाल चंद्र रॉय त्रिपुरा से वो मंच पे आ जाए और ओमकार मरखान जी मंच पे आ जाए मध्य प्रदेश से, और बीके हरिप्रसाद जी के पास वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दें। अब मैं विनती करता हूं केरला से हमारे सीएलपी लीडर श्री वीडी सथोसेन जी से कि आएं और अपनी बात रखें। वीडी सतीशन जी आइए और अपनी बात रखिए। Honorable Congress President Sri Mallikarjun Kharge ji, Honorable General Secretary Organization Sri K.C. Venugopal ji, and all the leaders on and off the dais, and my dear friends, I am very much privileged to be here. We know that we are going through a dark times. Our democratic values, our secular credentials, and our socialistic vision are going down day by day. And you know that is all happening in the economic scenario also. The inequality is increasing. The gap between haves and have-nots is widening every day. 21 richest Indians hold as much wealth as bottom 70 crore Indians. Gautam Adani amassed $120 billion and he added another $100 billion within the past 3 years. It was a fraud on the financial institutions, our banks and LIC. It was a fraud on our stock exchange. It was a fraud on the shareholders, lakhs of shareholders. My request to the AICC is to prepare a document which is explaining in a simple language, without technical or fiscal terms, for convincing the people of India about this biggest fraud ever we have seen in the history of this nation. And the people are in trouble. The price hike in the essential commodities and price fall in the agricultural products made the life of the common people very vulnerable. Implementation of the GST system and the centralization of the tax collection affected the state finance. States do not have any role in tax collection. The concept of fiscal federalism is dying. I'm going to conclude. There is a banking tragedy in India. Indira Ji nationalized the banks 53 years back. Before that, all the Indian banks were in the pockets of feudals and the corporates. After 53 years, now it is in the same pockets of the corporates. If you are taking 50,000 rupees or 5 lakhs rupees and you are not going to pay for consecutive 3 months, your account will be declared as NPA, non-performing asset, and your
residential plot and your agricultural land will be recovered within immediate effect. And if you are taking 5,000 crores or 10,000 crores, you are not paying a single money. You can go to New York or Washington or Bahamas, wherever you want to go, and your account will be write off by the Modi government. That is what is happening in India. This tax terrorism and tax centralization and MSMEs are going down. This is a real situation. The common people are suffering. So we want to come with alternative suggestions, and we have to point out all the fault committed by the Modi government. Thank you very much. अब मैं गुजारिश करता हूं दीपा दास मुंशी जी को कि वो आए और अपनी बात रखें, और सभी साथियों से आगे विनती है, मीडिया के साथियों से भी, कि यहाँ पे व्यवस्था बनाए। आपको इंटरव्यू लेना है तो पीछे लेके जाके लेइए, आगे आगे व्यवस्था बना के रखे। दीपा दास मुंशी जी। धन्यवाद। मंच में उपविष्ट वेणुगोपाल जी, सम्मानित मंच, और हमारे सामने जो पीसीसी और एआईसीसी के डेलीगेट्स आए हैं इस प्लेनरी सेशन में, सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूं। ये हम लोगों के कांग्रेस पार्टी के सारे सदस्यों में एक रीयूनियन बन जाता है जब हम लोग ऐसे प्लेनरी सेशन में आते हैं। लेकिन जो अहम बातों को लेके यहाँ पे चर्चा हो रही है, जो रेजोल्यूशन को पास होने जा रहे हैं, मैं एक कार्यकर्ता के तरफ से ये बात रखना चाहती हूँ कि हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। मैं एक आम कार्यकर्ता की तरफ से ये बात रखना चाहती हूँ कि एक कार्यकर्ता 5 साल अपना इलाके में, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, काम करके एक जमीन तैयार करते हैं, लेकिन कोई और दूसरा पार्टी से हमारे पार्टी में आ जाता है और उनको टिकट मिल जाता है, तब वो कार्यकर्ता का मन बहुत दुखी हो जाता है। एक तो डिमोनेटाइजेशन हमारे पूरे देश को खतरे में डाला है, और कांग्रेस पार्टी में जो वर्कर्स का डिमोरलाइजेशन होता है, उसके लिए थोड़ा सा पार्टी को देखना बहुत जरूरी है। हमारे पार्टी में बहुत सारे पोस्ट है, चाहे वो ब्लॉक लेवल स्तर पे हो, चाहे जिला स्तर पे हो, चाहे प्रदेश स्तर पे हो, चाहे आईसीसी स्तर पे हो, वो खाली होते ही उसको पूर्ण कर देना चाहिए। ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट में कोई दूसरे पार्टी से आ जाए, उनको टिकट भी मिल जाए, चाहे दूसरे पार्टी से आ जाए, उनको पद मिल जाए पार्टी में। ये हमारे कार्यकर्ता को बड़ा दुख महसूस होते हैं। हम थोड़ी देर पहले नेताजी की बात सुन रही थी, नेता डिसूजा हमारे महिला अध्यक्ष, वो कह रही थी कि महिला सशक्तिकरण की बात है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी आरक्षण है, लेकिन हम ये पालित नहीं कर पाते। इसीलिए मैं जब हिमाचल में या त्रिपुरा राज्य में स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन की तरफ से गई थी, महिला कैंडिडेट मिलना मुश्किल हो गया था। इसीलिए महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी हमें गुजारिश है, पार्टी को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सही वक्त पे सही आदमी को सही पद पर लेना, ये भी एक राजनीतिक निर्णय है, और वो निर्णय करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। अब मैं विनती करूंगा उत्तर प्रदेश से वीरेंद्र चौधरी जी को आए और अपनी बात रखें। There is a announcement. Mr. Veerappa Moily ji will speak on political resolution
Mr. Chidambaram ji will speak on economic resolution. Kamalnath ji will speak on economic resolution, and it will start from will start from 5:30, 5:45. I request Chidambaram ji and Veerab Moili ji to be on the dais by 5:30, please. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गोयल जी। इस मंच पर उपस्थित आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, मंच पर उपस्थित सभी स्टीयरिंग कमेटी के सम्मानित सदस्यगण, विभिन्न स्टेट से आए हुए प्रदेश अध्यक्षगण, सीएलपी लीडरगण और सामने देश के कोने कोने से आए हुए सभी सम्मानित एआईसीसी और पीसीसी के डेलीगेट साथियों, सबसे पहले तो मैं नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक छोटे से जनपद से चल के मुझे यहां आके इस राष्ट्रीय मंच पे आज बोलने का अवसर राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज का ये 50वां महाधिवेशन, जिसमें यह रिजोल्यूशन जिस पे हम आप सब चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने आज जो ये रेजोल्यूशन रखा है, आदरणीय सुरजेवाला जी ने, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था और खास करके मैं अपने उत्तर प्रदेश के बारे में जरूर कहना चाहूँगा इस मंच से कि उत्तर प्रदेश इस देश का जो सबसे बड़ी संख्या में लोकसभा और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या है और लगातार पिछले 32 वर्षों से उत्तर प्रदेश में हम सत्ता से बाहर हैं। तमाम कांग्रेस पार्टी में रेजोल्यूशंस आए और परिवर्तन हुआ। हमें आज बड़ी अपार खुशी है कि यह प्रस्ताव जो यहाँ पे आया है उत्तर प्रदेश के उन लोगों के लिए, खासकर पार्टी में काम करने वाले उन सभी कार्यकर्ताओं के लिए, उन साथियों के लिए जिन्होंने वर्षों से अपनी त्याग, तपस्या और अपना जीवन लगा करके कांग्रेस के लिए काम किया है और आज भी वो विधायक किसी सम्मानित पद से वंचित रह गए हैं, उनके लिए यह रेजोल्यूशन निश्चित रूप से एक आशा की किरण है, एक ऐसी किरण जिसे कार्यकर्ता लंबे समय से इंतजार कर रहा था। अब उसके दिमाग में और उसके दिल में आज यह जरूर इस महाधिवेशन से बैठेगा कि अगर उन्होंने उत्तर प्रदेश में और कांग्रेस के लिए अगर काम किया है तो आने वाले समय में उनको भी उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा इस रेजोल्यूशन में रखा गया है। मैं साथियों, खास करके उत्तर प्रदेश से आए हुए सभी सम्मानित एआईसीसी और पीसीसी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि इन समस्याओं को लेके जिस तरह से हालात हैं देश में और उत्तर प्रदेश में, खास करके आपको लड़ना होगा और लड़ने के लिए आपको पार्टी ने वो तमाम चीजें और संगठन में आपको पद दे रखे हैं, उसको लेके आपको गांव में जाना होगा। और आज एक ऐसे तपस्वी हमारे नेता राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा रही है, जिसका संदेश आपको हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत दिखाना है, अपनी ताकत लगा कर अपने घरों में, अपने गांव में, अपने चौराहों पे आप अगर इस बात को रखेंगे किसानों की उस उग्र समस्याओं को, तो निश्चित रूप से आपको उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में कांग्रेस की मजबूती के साथ उभरेगी। ऐसी सब बातों से आप सभी आए हुए जो प्रतिनिधियों से, खास करके पीसीसी सदस्यों से विनम्र निवेदन करते हुए कि आने वाले समय में कांग्रेस की मजबूती के लिए जो आपको मौका मिला है, अवसर मिला है, उसके लिए आप समय दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शीर्ष नेतृत्व का जिन्होंने मुझे मौका दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। अभी मैं अनुरोध करता हूं मिस्टर ओमकार सिंह मरकाम, मध्य प्रदेश से।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 50वें महाअधिवेशन के इस मंच में विराजमान आदरणीय हमारे आदिवासियों के, दलितों के नेता और हमारे प्रणेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे प्रेरणा स्रोत नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय केशु बेड़ी गोपाल जी, आदरणीय हमारे प्रभारी अग्रवाल साहब, आदरणीय वीके हरिप्रसाद जी, उपस्थित गांव, शहर और देश के आए हुए हमारे कांग्रेस के जाबाज सिपाहियों, साथियों, आज जिस तरह से देश की अखंडता, देश की संप्रभुता और देश की सत्य अहिंसा का आज जो देश के हमारे अखंडता का चुनौती बना हुआ, इस देश के अंदर जो हालात हैं, आज आप और हम सबको हमारे नेता, हमारे पूर्वजों के बताए मार्ग में चलने की जरूरत है। साथियों, उस दिन को याद करने की जरूरत है जब देश के अंदर अंग्रेज इस देश की अखंडता को कमजोर करके इस देश के अंदर बर्बरता पूर्वक इस देश की अमन चैन को बर्बाद करके रखे थे। तब कांग्रेस के तिरंगे के नीचे हमारे कांग्रेस के नेताओं ने, पूज्य महात्मा गांधी जी से लेकर के हजारों नेताओं ने देश की अखंडता को कायम रखने के लिए अपनी जान की आहुति दिया। इतना ही नहीं, देश की आजादी के बाद अखंडता को बनाए रखने के लिए, तिरंगा को लहराने के लिए हमारे नेता स्वर्गीय इंदिरा जी ने अपना जीवन को बलिदान दिया। उनके लाडले सपूत राजीव गांधी जी ने अपने जीवन को न्यौछावर किया और उनके पद चिन्हों में चलते हुए हमारे नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी आज देश के अंदर अमन चैन के लिए सब कुछ न्यौछावर लगाकर काम कर रहे हैं। और गांधी जी के चिराग राहुल गांधी जी आज कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल करके इस देश की अखंडता, अमन चैन को बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। अब जरूरत है आपको और हमको, ये अंग्रेजों के नीति पे चलने वाले भारतीय जनता पार्टी देश के इस समय एक ऐसे नेता है जो सुबह शाम असत्य बात करता है, जिनके मुंह में राम बगल में छुरी है, ऐसे नेता आज देश के लोगों को गुमराह कर रहा है। पूंजीवाद के इशारे में आदिवासियों के भविष्य को बेचने का काम कर रहा है, अनुसूचित जाति जनजाति के भविष्य को जो रोकने का काम कर रहा है। आज हमारे नौजवानों को खड़े होने की आवश्यकता है। मेरे साथियों, आज मैं ये कहना चाहूंगा, आज कसौटी की बेला है, आज कसौटी की बेला है। निकल पड़ो मैदान में, दाग ना कोई लग ना पाए कांग्रेस की शान में, दाग ना कोई लग ना पाए कांग्रेस की शान में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मरकम जी। अब मैं अनुरोध करता हूं गोपाल राय, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी। Good afternoon, everybody assembled here who are the builder of the Congress. Honorable Congress President Mallikarjun Kharge ji, most respected our beloved leader Sonia Gandhi ji, Rahul ji, our General Secretary in charge organization Venugopal ji, the Chief Minister of Chhattisgarh and Congress President deserve appreciation for their this finest accommodation and the organization. All respected leaders in the dais and brothers and sisters. Firstly, the political resolution, draft resolution, it is a document which I can say unique, and it has been drafted
according to the desire of the Indian people. I appreciate the AICC personnel, those who have drafted this political resolution. In the organizational reforms, I may be excused. I should say I am the PRO of the Arunachal Pradesh. In the organizational resolution, the membership was declared mandatory in not in writing but in the form of digital form. But my request to the Honorable President, I have seen in Arunachal Pradesh, till I am the PRO of that state, some places, China border and other places, there is no net connection. In that case, I think there should be maybe some relaxation where the net connection is not there. And others state, I think almost all the state of the country connected with the net connection is there, then digital membership I do support. One thing, there is a shameful Prime Minister about Mr. जुमला सम्राट मैं बोलता हूँ, जुमला सम्राट, he told before the coming to the power, the 36 inch छाती है उनका, लेकिन उन्होंने इतना खराब बात किया जो हमारा लीडर, this beloved leader who is the icon of the Indian people in general and icon of the leaders of the Congress and workers in particular, Mr. Rahul ji created that history, Kanyakumari to this Jammu and Kashmir, about 4,000 kilometers. He has worked, it will enter in the Guinness Book, I should say. And once he told our leader Papu, but in the last session, the 36 inch Jumla Samrat, the Modi ji could not answer the Rahul ji speech, and he has failed now to in the eye of the Indian people. Modi became the Papu. He is the failure Prime Minister in India. With this, I am grateful to the High Command that I have been given the time to speak, and this 85th Plenary, it is successful, and my gratitude to the Sonia ji, Kharge ji, Rahul ji, and all the leaders sitting in the chairs. Thank you. Namaskar. Vande Mataram. Thank you, Gopal Raji. I request SS Ramu Subbu, ex-MP from Tamil Nadu, to be on the dais. And now Mr. Mahendra Joshi. Mahendra Joshi ji, आप आए, संबोधित करें. महेंद्र जोशी जी. महेंद्र जोशी जी. और हमारे राज्यसभा के मेंबर दीपेंद्र हुड्डा जी, कहीं भी हो तो स्टेज के तरफ आ जाइए. दीपेंद्र हुड्डा जी.
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, संगठन के महामंत्री आदरणीय केसी वेणुगोपाल साहब, मंच पर आसीन स्टीयरिंग कमेटी के सभी सम्मानित सदस्यगण, कांग्रेस पार्टी के सभी मंचस्थ प्रदेश कांग्रेस कमेटी और सीएलपी के नेतागण, हमारे इंचार्ज आदरणीय जेपी अग्रवाल जी, प्रदेश के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी, यहाँ उपस्थित एआईसीसी के सम्मानित डेलीगेट्स और पीसीसी के डेलीगेट्स, आदरणीय मित्रों, मैं राजनीतिक प्रस्ताव के पक्ष में अपनी कुछ बातें कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। समय की बहुत कम समय में बहुत कुछ बातें कहना है। राहुल गांधी जी ने जब 3570 किलोमीटर की यात्रा केरल से शुरू करके और कन्याकुमारी से आरंभ करके जब कश्मीर तक पहुंचने की बात हुई तो सारे हिंदुस्तान में एक नई राजनीतिक इबारत लिखी गई। राजनीति का एक नया आयाम था, एक नया सोपान तैयार किया गया। और मैं तो इस बात को बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जब आजादी का आंदोलन चला, आजादी के पूर्व इस देश को गांधी ने एक रास्ता दिखाया था, महात्मा गांधी ने। और आज फिर इस देश का लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष वातावरण और समाजवादी व्यवस्था जब खतरे में हुई, तब फिर एक गांधी हमारे बीच में आया, उसका नाम राहुल गांधी है, जिसने फिर इस देश के अंदर एक नई राजनीतिक इबारत लिखी है। 30 अक्टूबर 1948 को सुबह 4 बजे जो इस रेजोल्यूशन में आप पढ़ेंगे, महात्मा गांधी ने सिर्फ एक लाइन मांगी थी, एक बात कही, मैं उसको दोहराना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, मैं तुमसे कोई राज्य या स्वर्ग या किसी मुक्ति की मांग नहीं करता, मैं केवल एक चीज चाहता हूं, लोगों की पीड़ा से मुक्ति। राहुल गांधी जी ने अपनी पूरी यात्रा में जो सारी की सारा संदेश जिस बात में छुपा हुआ है कि वैष्णवजन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, उन्होंने पूरे देश के लोगों से मिलकर उनकी पीड़ाओं को, उनकी संवेदनाओं को टटोला और इस भारतवर्ष में फिर एक आशा की नई किरण जगाने का काम किया है। मैं आपसे सबसे निवेदन करना चाहता हूं, हम सब अगर इस मौके पर, अगर रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, जब राजनीति में बहुत कोई बड़ा निर्णयात्मक स्थितियां बने और हम अगर चुपचाप खड़े हुए दर्शक बन के देखेंगे, तो दिनकर ने कहा था कि समर शेष है, समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। इसलिए ये समय चुप रहने का नहीं है, क्योंकि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। मेरे आपके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। आप सभी से निवेदन करता हूं, संघर्ष के लिए हम सब आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में ये काम करें। और एक लाइन में, बहुत खामोशी है, अब शोर आएगा, अरे तुम्हारा तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जोशी जी। आई रिक्वेस्ट मिस्टर रामू सोबू, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम तमिलनाडु, टू कम ऑन dais. Respected our President, AICC President, our senior leader Mallikarjun ji, respected Madam Sonia ji, respected Rahul ji, respected Priyanka ji, and senior leaders, ministers, working committee members, and our esteemed delegates from various states.
thank you very much for this occasion to speak in front of you in the 85th session of our Congress party. I am from Tamil Nadu. I am from village area. I got the opportunity from the Congress party. I am working for the 35 years in Congress party. Our Rajiv Gandhi came to my constituency to introduce me as a candidate at that time when I became MLA. During 89, I won the election without the alliance of Dravidian Party in Tamil Nadu. I became MP from Tirunelveli. This is my introduction. Today, really it is a very, very great occasion. I thank, first of all, for our Chief Minister of Chhattisgarh. Because amidst of trouble, the BJP is giving more trouble to organize this meeting. Our Congress people, our minister, so many ministers are in trouble. Even then, you have organized a very big gathering here. Really, we thank for our Chief Minister, first of all. Nowadays, the BJP, what the BJP is telling, Congress party after the independence, they are not at all doing anything for the people. What a blunder this. BJP is telling. What they are doing, they are not at all doing anything for this nation. They are killed the agriculture people. So many people are killed by this government, BJP government. I am hailing from the agriculture community. I am from the village area. I know that 50 crores of the people in India is depending only on agriculture. But the BJP government is not at all doing anything for the agriculture people. The agrarian community is totally destroyed. They are not at all giving any minimum support price. This is a problem. But the BJP is always problem to the poor people. Our Rahulji is made a very big jodo. 3,500 kilometers from Kanyakumari. We have started there from my area, from our area. Kanyakumari to Kashmir. How is it you see? Physically he is very strong enough. He is going across the various states. He is studying each and every people. Now people are telling in India, he is the right person to run the nation. He will come to the lead this nation. He is the right person. And also he is telling always, I am not going to afraid for these atrocities of this BJP government. Our Congress people are afraid. Tell our delegates are telling, our Rahulji is strong enough. He is telling, we are not going to afraid for this, whatever may be the atrocities. But you are swindling this nation. You are swindling this banking sector. All the banking sector is plundered by this BJP government and Adani group. What is going on in this nation? We have to get the freedom. We have to nations. Only Rahulji alone is going to form the government. We are going to win. Congress going to win. In the future, we have to come together. We fight, and we will win. Thank you very much, Father. थैंक यू रामसुबू जी। मैं अभी अनुरोध करता हूं रविंद्र शर्मा जम्मू कश्मीर से और दीपेंद्र हुड्डा जी, आफ्ताब अहमद जी एमएलए नू से हरियाणा, कृपया मंच के तरफ आ जाइए। और मिस्टर ताज पीर, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष चित्रदुर्ग, प्लीज मंच के तरफ आ जाइए। धन्यवाद। सर्व सम्मानित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सदा सम्मानित
त्याग की मूर्ति हमारी यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे प्रेरणा के स्रोत नेता श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, केसी वेणुगोपाल साहब, यहाँ सम्मानित मंच, मेरे सामने देश के कोने कोने से आए हुए हमारे डेलीगेट हजरात, अपने घरों में मीडिया और सोशल मीडिया से हमारे करोड़ों कार्यकर्ता, आप सबको मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जब यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर होती है तो तब जम्मू कश्मीर की चर्चा के बगैर ये अधिवेशन मेरे ख्याल से अधूरा रहता है। मैं मशकूर हूँ कि मुझे मौका दिया है कार्यकर्ता को। जम्मू कश्मीर के हालात सारे देश से ज़्यादा मुश्किल हैं। जिस हिस्से में दर्द है उस दर्द को देश के साथ बांटा ना जाए तो मैं समझता हूँ कि कोताही होगी। जम्मू कश्मीर जो नया कश्मीर है, उस कश्मीर में राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से चल करके जब एक उम्मीद की किरण लेकर के पहुंचे, सारे देश ने और विश्व में देखा कि किस तरह से ऐतिहासिक स्वागत हुआ। और उस कश्मीर में यहाँ पे माइनॉरिटीज की किलिंग्स बढ़ गई हैं, टारगेटेड किलिंग्स बढ़ गई हैं। कश्मीरी पंडित हमारे भाई बहन 5500 लोग जो हैं वो जम्मू में आकर के फिर विस्थापित हो गए हैं। वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज हमारे जवानों की हत्या हो रही हैं। लेकिन जब राहुल जी वहाँ पहुँचे, सुरक्षा की कमी पड़ी, लेकिन लोगों ने सुरक्षा दी, भव्य स्वागत किया और एक संदेश दिया कि ये वही जम्मू कश्मीर है जिसने 1947 में पाकिस्तान की टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करके हिंदुस्तान सेकुलर भारत महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल सरदार पटेल के भारत को चुरा था। और 80% आबादी के बावजूद जम्मू कश्मीर ने हिंदुस्तान के साथ अपने विलय किया। वही जम्मू कश्मीर है। आज इसको लॉटरी और तजुर्बा गाह बनाया गया है। कभी नोटबंदी के जरिए ये कमर तोड़ने वाले थे आतंकवाद की, कभी स्टेट को 370 को तोड़ करके इन्होंने कहा आतंकवाद अलगाववाद की कमर टूटेगी। मुझे अफसोस है कि ये कहते हुए कि आज इसी साल जब 2022 में 29 टारगेटेड अटैक्स, टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की, उसके अलावा हम सैल्यूट करते हैं उन जवानों का, आर्मी, सेना, सिक्योरिटी फोर्सेस जो वहाँ कुर्बानियाँ दे रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ा सैल्यूट के वहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख सारे लोग शहीद होकर के इस देश के तिरंगे को बुलंद रखे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विफलता नजर आती है। 3 साल 8 महीने होकर के जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार नहीं है, हमारी ऐतिहासिक रियासत को तोड़ दिया। आज इस मंच से पूछना चाहते हैं कि आप चुनाव कराने में विफल क्यों रहे? आज तक चुनाव कराने की घोषणा कर पाए। आप तो कहते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर को संभाल लिया, लेकिन साथियों वो कश्मीरी पंडित भाई बहन 5500 के करीब जिनको हमने घरों में बसाया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की नीति की वजह से वो गए थे, आज वो लोग फिर वापस जम्मू में हैं। बहुत हजारों की तादाद में हमारे जवान जम्मू जो मुलाजिम थे वो जम्मू में सड़कों पे हैं, उनकी तनख्वाह बंद की है। आज लोगों की जमीन खोई जा रही है, आज बुलडोजर चला है, आज प्रॉपर्टी टैक्स वहाँ है, वहाँ 7% इंडस्ट्री जो है वो बंद हो गई है। देखिए देश को एक अलग पिक्चर दिखाई जाती है मेरे साथियों। जो देश को पिक्चर दिखाई जाती है मीडिया के माध्यम से, उसकी हकीकत को जानिए। जम्मू कश्मीर आज भी वो तिरंगा लेकर के खड़ा है। कांग्रेस पार्टी के हमारे नौजवान नेता, अध्यक्ष और बाकी हम सारे साथी, हम इस संघर्ष में राहुल जी आपके साथ हैं। जब भी चुनाव होगा एक अच्छा संदेश जम्मू कश्मीर से आएगा। जय हिंद, जय भारत। मैं अनुरोध करूंगा लड़क के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जोरा जी वो आए संबोधित करें। वेणुगोपाल जी, सीनियर लीडर सारे और साथियों, मैं सिर्फ 2 मिनट बोलूँगा, वो भी लद्दाख के कंसर्न। एक तो जब लद्दाख को यूटी मिला, शुरुआत में हमारे लोग बहुत खुश हुए थे क्योंकि ये यूटी का डिमांड करीबन 70 साल से हम लोग कर रहे थे। लेकिन जो यूटी हम मांग रहे थे वो विद लेजिस्लेचर था ऑन द लाइन्स ऑफ पौंडीचेरी। जो यूटी हमें दिया गया वो चंडीगढ़ वाला यूटी दिया, जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का आपका रूल चलता है। तो अभी लद्दाख के लोग एजिटेशन कर रहे हैं स्टेटहुड के लिए, फुल स्टेटहुड के लिए। दूसरी बात,
यूटी बनने के बाद में जो हमारे संरक्षण थे, जो हमारे प्रोटेक्शन थे, वो सारे खत्म हो गया। आर्टिकल 35A आपका हट गया, 370 हट गया। तो अभी लोग बहुत ही नाराज है अपने आइडेंटिटी को लेके, अपने कल्चर को लेके। एक एप्रीहेंशन है, एक डेमोग्राफिक एक चेंज होगा। तो लोग अभी एजिटेट कर रहे हैं लद्दाख में, लेह और करगिल के लोग मिल के, जहाँ स्टेट हुक की मांग कर रहे हैं। एक दूसरी बात, चूँकि लद्दाख प्रीडोमिनेंटली ट्राइबल पॉपुलेशन है 97%, तो 6 शेड्यूल में लद्दाख को लिया जाए, ये डिमांड चल रहा था। दूसरी बात, चूँकि हम ऐसा एक स्ट्रेटेजिक एरिया है लद्दाख, आपका ईस्टर्न साइड में चाइना है, वेस्टर्न साइड में पाकिस्तान है, बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही स्ट्रेटेजिक एरिया है। तो वहाँ आए रोज चाइनीज इंकर्शन कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में 2014-15 में जब शी जिनपिंग को बुला के अहमदाबाद ले जाके उसकी बीवी और दोनों को झूला झुला रहे थे मोदी जी, उस टाइम उसी दिन चाइनीज ने इंकर्शन किया था आपके दमचौक में। आज हालात ये है कि 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे हम लोगों ने पेट्रोलिंग करना बंद कर दिया, जिसका मतलब चाइनीज को हमने थमाया। उसी तरह जो पेंगोंग लेक में जहां पहले आपका पेट्रोलिंग पॉइंट 8 तक हमारे लोग जा सकते थे, वो सारा सरेंडर करके आज के दिन हम सिर्फ पेट्रोलिंग पॉइंट 3 तक जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारा इलाका है उनको बफर में कन्वर्ट किया, चाइनीज को फायदा दिया। दूसरी बात, वो देपसंग एक नाम का जगह है, प्लेन है, ये अक्साई चीन एरिया में है। वहाँ चाइनीज ने करीबन 18 किलोमीटर अंदर आके ऑल वेदर करीबन 200 शेल्टर बनाए हैं। तीसरा, जो गलवान वैली है जहाँ पे 200 हमारे जवानों का शहीद हुआ, वहाँ भी वन टच पॉइंट पे चाइनीज बैठे हुए हैं। वो आपका सप्लाई रूट टू देपसंग वहाँ ख़त्म कर सकता है, वो एक चिकन नेक बन गया है, वहाँ भी हमने सरेंडर किया है। तीसरा, जो चंगछनमो एरिया बोलते हैं, वहाँ पे करीबन हम लोगों ने 40 किलोमीटर चाइनीज को अंदर आने दिया है। प्राइम मिनिस्टर बोलता है ना कोई गुस्सा है, ना 1 इंच ज़मीन हमने दिया है। उनसे पहले उन्हीं का डिफेंस मिनिस्टर बोलता है चाइनीज गुस्साया है। चीफ ऑफ द आर्मी साहब कहता है चाइनीज गुस्साया है। अकेला प्राइम मिनिस्टर कहता है चाइनीज नहीं गुस्सा है। तो मोदी जी आपके गुजरात के बिजनेसमैन जो चाइनीज के साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा चलाते हैं, उनको फायदा पहुंचाने के चक्कर में हमारे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। एक शेम की बात है। इसी के साथ मैं खत्म करता हूं, मुझे बोलने का मौका दिया, शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद जोरा जी। अब मैं अनुरोध करूंगा जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष चित्रदुर्गा ताज पीर आके आपको संबोधित करें। सबका नमस्कार। आज के इस प्रोग्राम के अध्यक्ष एआईसीसी अध्यक्ष जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे जी और मंच पर उपस्थित तमाम कांग्रेस के सीनियर और बुज़ुर्ग लीडर्स और यहाँ पर तशरीफ़ फरमा तमाम कांग्रेस के नौजवान लीडर्स, मैं आज इस मंच से भारत जोड़ो यात्रा के कुछ अनुभव आपसे शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। मैं चित्रदुर्गा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष के हैसियत से ये कहना चाहता हूँ कि जो राहुल गांधी जी ने करीब 3,500 किलोमीटर का पद यात्रा भारत जोड़ो पद यात्रा में लिया, उसमें से करीब 100 किलोमीटर यानी 5 दिन हमारे ज़िले में हमें वो पद यात्रा में हिस्सा लेने का अवसर मिला। वहाँ के एक चंद एक्सपीरियंसेस में अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहला ये कि जब पहले दिन पद यात्रा शुरू हुआ, हमने राहुल गांधी जी से रिक्वेस्ट की कि रास्ते में अंबेडकर जी का एक प्रतिमा पड़ता है,
उस पर माला चढ़ाने के लिए। उसके दौरान बहुत लोगों की भीड़ की वजह से उन्हें थोड़ी तकलीफ हुई, इससे थोड़ा वो नाराज़ थे और वो नाराज़गी से एक संदेश गया कि हम कांग्रेस के लोग जितनी भी तकलीफ हो अंबेडकर जी का गौरव करते हैं। इस संदेश से हमें बहुत कांग्रेस का एक अच्छा संदेश गया है, यानी कि कांग्रेस के लोग जिन्होंने संविधान हमारे देश को दिया उनका आदर करते हैं। दूसरा एक स्पेशल एक्सपीरियंस ये हुआ कि रास्ते में जब राहुल गांधी जी एक चाय के लिए, एक टी ब्रेक के लिए 5 मिनट के लिए रुके, एक बूढ़ी औरत अपने खेत में उगाए हुए काकड़ी बोलते हैं जिसको कुकम्बर, वो ला के राहुल गांधी जी से वो पेश किए और वो बोली कि ये काकड़ी वो ज़मीन में उगाई है जिस ज़मीन को इंदिरा गांधी जी ने गरीब किसानों को दी थी। यानी कि इससे ये संदेश हुआ कि जब इंदिरा गांधी जी ने गरीब लोगों के लिए ज़मीन अता की, उसमें पिकाया हुआ कुकम्बर राहुल गांधी जी को लाके पेश किए, उससे राहुल गांधी जी खुश हुए। इससे एक संदेश मिलता है कि हम जब भी कांग्रेस के लोग किसी का, गरीब का, किसान का भला करेंगे, उसका गौरव अपने बच्चों को यानी नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचेगा। और तीसरा एक अनुभव ये हुआ कि राहुल गांधी जी पाद यात्रा में चल रहे थे, चंद लड़के नौजवान लोग एक पानी की टंकी पे 3 या 4थे माले की पानी की टंकी पे अपना तिरंगा लहरा रहे खड़े हुए थे। तुरंत राहुल गांधी जी ने उस तिरंगे को लेकर वो 3 माले की पानी की टंकी पर चढ़ गए। यानी कि इससे हमें ये संदेश दिया कि हम कांग्रेस वालों की जिम्मेदारी ये है कि तिरंगा हर वक्त हम ऊंची जगह पे पहुंचेंगे, तिरंगा का मान करेंगे, तिरंगा हमारा ऊंचा रहेगा। ये संदेश उन्होंने हमें दिया। ये सिर्फ हम अकेशन को इसलिए मैं आपके पेश करता हूँ कि हम जो उन्होंने जो हमारे सामने हमारे साथ जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमसे वो जो एक्सपीरियंसेस किए, ये संदेश सारे कांग्रेस वालों के लिए, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी ये संदेश है। यानी कि हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हर वक्त तिरंगा का मान ऊंचा रखने के लिए हम कांग्रेस के लोग हर दिन तैयार रहे। इसके साथ साथ मैं ये संदेश नौजवानों को, यंग पीढ़ी को एक गुजारिश करता हूं कि हम आने वाले दिनों में जो भी कांग्रेस के लोग भला करेंगे, इसके देश की भलाई करेंगे, इसका भलाई का फल अगले जनरेशन के लिए, अगले पीढ़ी के लिए सोच के हम करेंगे। इसके साथ साथ ये गुजारिश करता हूँ कि यहाँ से जो हमें प्रेरणा मिली है कांग्रेस के समावेश से, इस प्रेरणा को आगे लेकर जाए, नेक्स्ट जनरेशन तक पहुँचाए और कांग्रेस का और देश का नाम ऊंचा रखे। जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद ताजपीर जी। पीसी शर्मा जी मध्य प्रदेश से पूर्व मंत्री, कृपया मंच के तरफ आ जाइए। और मैं अभी अनुरोध करता हूं सुबोध हरिद्वाल, युवा कांग्रेस के प्रवक्ता, 2 मिनट में अपना भाषण खत्म करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माता कौशल्या के घर में और प्रभु श्री राम के ननिहाल में देश भर से आए कांग्रेस के डेलीगेट्स का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंच पर आसीन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम जी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में शुरू से रहे हम सब के नेता, इस देश के नेता, युवाओं की आवाज आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मौजूद मंच पे सभी नेतागण, सामने उपस्थित देश भर से आए हमारे साथी। मैं सिर्फ 2 बातें यहां पर कहने के लिए आया हूं। जो राजनीतिक प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी ने पेश किया, सबसे पहले उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। एक युवा होने के नाते, छत्तीसगढ़ का युवा होने के नाते और आभार व्यक्त इसलिए करता हूं क्योंकि न्याय की शुरुआत जो राहुल गांधी जी ने कहा था 2019 में कि हम न्याय करेंगे, उस न्याय की शुरुआत 2018 में कांग्रेस की सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ से हुई। ये कहते हुए मुझे गर्व होता है। और आज युवाओं के साथ अगर कोई न्याय कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं बहुत खुशी के साथ कहना चाहता हूं, राजीव जी ने अधिकार दिया था 18 साल की उम्र में वोट डालने का और पंचायत के माध्यम से
जनप्रतिनिधि बनने का। और आज कांग्रेस पार्टी ने अपने संविधान में संशोधन कर अधिकार दिया है युवाओं को 50% से ज्यादा अधिकार देने का अपनी पार्टी में, अपने संगठन में, अपने पदों में, और सीडब्ल्यूसी में भी ज्यादा से ज्यादा युवाओं को लेने का जो आपने प्रस्ताव दिया है, मैं पूरे युवाओं की ओर से, देश के युवाओं की ओर से उस पर आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी हमेशा कहते आई है और साबित भी करते आई है कि हम हर जाति धर्म के साथ हैं, हम सेक्युलर हैं, यह हमें किसी को सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। पर आज फिर संविधान में हमने लिख दिया, अपने पार्टी के संविधान में लिख दिया कि हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग से आने वाले व्यक्ति को हम अपनी पार्टी में स्थान देंगे। सीडब्ल्यूसी जैसी संस्था जो हमारी पार्टी की सर्वोच्च संस्था है, उस पर भी स्थान देंगे। मैं उसके लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। उदयपुर चिंतन शिविर का जो प्रस्ताव था, 50% से ज्यादा 50 साल के कम उम्र के युवाओं को स्थान देने का पार्टी के अंदर, मैं उसके लिए भी युवाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। और इसके साथ ही पीसीसी और एआईसीसी डेलीगेट्स के पदों पर उसको सुनिश्चित करने के लिए भी इस मंच से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे बोलने का मौका दिया, अखिल भारतीय कांग्रेस के नेतृत्व को आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं अभी अनुरोध करूंगा पीसी शर्मा जी, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश, वो आए आपको संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो। आज के इस 85वें प्लेनरी सेशन में हम सबकी नेता, देश की नेता सोनिया गांधी जी, आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, वेणुगोपाल जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम बघेल जी, यहाँ के अध्यक्ष काम जी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस मध्य प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी, उपस्थित सभी स्टीयरिंग कमेटी के सदस्यगण और उपस्थित कांग्रेस के सभी डेलीगेट्स, एआईसीसी डेलीगेट, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और पीसीसी डेलीगेट्स। आज ये जो नाम रखा गया है शहीद वीर नारायण सिंह नगर, ये बहुत सही नाम रखा गया है, क्योंकि ईडी और सीबीआई ने यहाँ पर छापे मारे कि ये हमारा सम्मेलन नहीं हो, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसी तरह से काम किया जो अंग्रेज करते थे। अंग्रेज भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो सम्मेलन होते थे, जो आंदोलन होते थे, वो लोगों को जेल में ठूस देते थे और लोगों को बंद कर देते थे। वही काम इनने किया। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ की कांग्रेस अध्यक्ष को, यहाँ के मुख्यमंत्री जी को, यहाँ के सभी कांग्रेस के साथियों को। पूरी ताकत से उन्होंने एक सफल सम्मेलन यहाँ पर किया है। मैं कुछ यादें भारत जोड़ो जो हमारी यात्रा थी उसके बारे में कहना चाहूँगा। बहुत लंबी यात्रा थी, 380 किलोमीटर की, जो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी हुई। उस यात्रा में एक परिवार आया और उसका कहना था कि उसके एक बच्चे का फोटो हो गया है राहुल जी के साथ, दूसरे का नहीं हुआ है तो डिप्रेशन में आ गया है। उसका फोटो कराया। 2 बच्चे जो मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश में, उनके जिले सीहोर से 2 बच्चे पास लेके भोपाल से गए और सीधे राजस्थान पहुंच गए, और राजस्थान पहुंच के उनके साथ घूमे, वहां चले, फोटो खिंचवाई। बोले तुम्हारे साथ कौन है? तो बोले नहीं, हम दोनों अकेले आ गए। 8-10 साल के बच्चों की ये स्थिति थी। और फिर आदरणीय राहुल जी ने दिग्विजय सिंह जी को, जो इंचार्ज थे इस यात्रा के, उनको कहा कि इनको इनके घर पहुंचाइए। लेकिन इससे बढ़कर वो श्रीनगर पहुंच गए, लेकिन इस बार उनके पेरेंट्स साथ थे। ये थी राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, जिसे बच्चे से लेकर युवा उनके साथ हुए। यहाँ कमलनाथ जी ने जो इकोनॉमिक प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करते हुए एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि आज बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। मध्य प्रदेश में 8 साल के अंदर 25,000 मजदूरों ने आत्महत्या की, न जाने कितने किसानों ने आत्महत्या की, न जाने कितने युवाओं ने आत्महत्या की। और परिवार इकोनॉमिक पोजीशन, बेरोजगारी की वजह से परिवार आत्महत्या कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। मैं जो मध्य प्रदेश में मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश इंदौर में हुआ था, वो एक विश्वास उन्होंने पैदा किया था, और जब तक विश्वास नहीं होगा तो ये उद्योग आते नहीं है, उद्योग पनपते नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस समय यहाँ आज एक नारा छत्तीसगढ़ में रायपुर में हमने देखा कि
बिजली फुल और बिल हाफ। और यही स्थिति मध्य प्रदेश में थी कि 100 रुपये यूनिट और 100 रुपये आपको देना है, 100 रुपये में 100 यूनिट। ये बिजली एक महत्वपूर्ण चीज़ है। आज मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पर लाखों का बिल है, वहाँ पर मंत्रियों पर लाखों का बिल है, वो एमपीवी को नहीं दे रहे हैं। लेकिन कोई गरीब आदमी बस्ती वाले नहीं देते हैं तो ट्रांसफर निकाल लेते हैं, उनकी डीपी निकाल लेते हैं। ये हालत है, ये स्थिति हो गई है। मैं कहना चाहता हूँ कि 15 महीने की मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी की सरकार और यहाँ के आदरणीय बघेल जी की सरकार और आदरणीय राजस्थान की सरकार, इनके तीनों को अगर हम मिला लें और इनके जो इकोनॉमिक इन्होंने जो आगे काम बढ़ाया है उसको अगर लेंगे तो आगे आने वाला चुनाव चाहे 2023 का हो चाहे 24 का हो, उसमें कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा, ये मेरा दावा है। तो इकोनॉमिक उसको लाने के लिए, और एक चीज, चाहे यहाँ की सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस की सरकार थी कमलनाथ जी की, किसानों का ऋण माफ किया। मनमोहन जी की सरकार ने 70,000 करोड़ का ऋण माफ किया था किसानों का, क्योंकि इकोनॉमी ये कहती है कि जब तक किसान को उसकी फसल का पूरा मूल्य नहीं मिलेगा तब तक उसकी परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी, जब तक किसी भी राज्य की इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकती। इसलिए किसानों पर ध्यान देने की बात है। और यहाँ की सरकार ने भी गाय का गोबर हो या गाय का मूत्र हो, ये भी खरीदा है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में किसानों का कर्जा माफ किया गया था, जिसकी वजह से एक इकोनॉमी इम्प्रूवमेंट हुआ था। लेकिन कोविड में जो सरकार को मध्य प्रदेश की 35 करोड़ रुपए लेकर भारतीय जनता पार्टी ने गिरा दिया, खरीद लिया, उसके बाद से कोविड के बाद आज बेरोजगारी चरम पर है। लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं है। केवल 2 किलो गेहूं मिलता है मध्य प्रदेश में और 8 किलो चावल। जहां पर गेहूं खाने की लोगों की आदत है, गेहूं चावल नहीं मिल रहे हैं। और चावल के अंदर एक प्लास्टिक का एक मटेरियल ऐसा मिलाया जाता है जिसकी लोग को घोषणा करना थी, लेकिन वो किए हुए जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। ये हालत हुई है। इसलिए ये समय है, ये जो सेशन आज हमारा हुआ है यहाँ पर छत्तीसगढ़ रायपुर के अंदर, ये एक नया चेंज लेके आएगा। ये ऊर्जा हम यहाँ से लेके जाएंगे। जो हमने सोनिया जी की जो एक रील देखी थी यहाँ पर, जो फिल्म देखी, उस फिल्म ने हमको सबक लेने की आवश्यकता है कि किस तरह से हमारी डिवोटेड लीडर ने हमारी कांग्रेस को 2004 में केंद्र में सत्ता दिलाई थी। और आज ये मान के चलिए, आज के बाद 2023 में जो चुनाव होंगे और 24 में जो चुनाव होंगे, उस सब में कांग्रेस जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद शर्मा जी। Now I request Shashi Tharoor ji to come and address the gathering. साथियों, आप लोग बहुत भाषण सुने हैं। तो संक्षिप्त में मैं तीनों रेजोल्यूशन के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। पहले आइडियोलॉजी, कांग्रेस पार्टी को अपने संस्थापक मूल्यों के लिए खड़ा होना चाहिए। We should be absolutely clear in our ideological stance in favor of inclusive India. The tendency to downplay some positions or avoid taking a stand on some issues in order not to alienate what we assume to be the sentiments of the majority only plays into the BJP's hands. We must have the courage of our convictions. We could have been more vocal on the Bilkis Banu outrage, attacks on Christian churches, murder in the name of car vigilantism, bulldozer demolitions of Muslim homes, and similar issues. These are Indian citizens who look to us for support. Bharat sabhi Bharatvaasiyon ka hai. If we do not speak out in such cases, we're only surrendering our core responsibility of standing up for India's diversity and pluralism, which should be central to the Congress's core message. I must say, भारत के मजहब निरपेक्ष लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। Second, on economic policy, we have a good resolution before us. We need clarity about what we stand for in economic policy. We should outline the elements of a progressive economic policy agenda that addresses head-on the challenge of unacceptable inequality in the country. The truth is,
that rampant crony capitalism is concentrating wealth in the hands of a few friends of the ruling regime and is damaging the economy, leading to massive problems of rising unemployment and diminished futures for young Indians. We must launch a direct assault on inequality and its causes. And we must work towards universal free public health care, universal school and higher education, a decent basic income for the poor, nyay, a higher minimum wage, strengthening Manrega, increased MSPs, decent housing for all, removing hunger, reducing unemployment. Of course, we need to specify in practical terms how we will ensure all this and be confident of our numbers. At the same time, we should reassure those who fear we are anti-business that we stand by the liberalization measures that were the gift of a Congress government to the nation, but along with a strong commitment to social justice. We want economic growth, but we must ensure that the fruits of that growth reach the poor and the marginalized. We know that the magic of the market will not appeal to those who cannot afford to enter the marketplace. We must lift the poor up so they can enjoy the full benefits of our economy. Garibi Hatao remains our core calling, and we are proud of our record in pulling millions out of poverty during UPA rule. We remain committed to continuing the effort. India will not shine until it shines for all. And business people have a crucial role to play as wealth generators and job creators. In urban India, we must speak for the necessities that basic urban voters lack. Better public utilities like city transport, good roads, affordable housing, clean drinking water, decent education in government schools. All of this requires our voice as well as perhaps a charge to restructure urban government and establish directly elected authorities to have the ability to make a difference in the lives of urban residents. India is a young country led by old people. We hold the world record for the largest gap between the average age of the population and the average age of the cabinet. Young Indians must believe we understand their aspirations and can be trusted to promote them in government. Our own party constitution amendment is a good place to start, but we must go farther. A digital revolution is upon us, and our youth must be ready to adapt to it. We must help them do so. I see vast opportunities for India, and we must seize them. At the same time, we must stay focused on climate change and pursue all avenues to combat this threat, even as we leverage some of the opportunities that will become available as the world transitions to cleaner technologies. International affairs. Foreign policy was long seen as an area of national consensus in which there was no Congress foreign policy or BJP foreign policy, only Indian foreign policy and Indian national interests. This tradition has sadly been undermined by the Modi government, which speaks ill of its predecessors abroad and refuses to take the nation into confidence on vital foreign policy issues, including what is happening on the LAC with China. It is shocking to hear our foreign minister say that China, or imply that China is too rich to stand up to. We must demand that Parliament be taken into confidence, that the nation be told what is our thinking about our vital national security interests. Foreign policy must again return to being a consensual national endeavor with bipartisan agreement and support. The fact is that India's future is bright as long as Congress fights the good fight. Bharat Jodo Yatra was a huge success, and it has revived the self-confidence of the party cadres. From here, let us send out a message of Congress Jodo. भारत का भविष्य तब तक उज्जवल होगा जब तक कांग्रेस अच्छी लड़ाई लड़ते रहेंगे। माना राह कठिन है, पर चलना होगा। हमको खुद सूरज बनकर जलना होगा। आपस में हम जुड़े रहे तो जीतेंगे। ये काले दिन फिर जल्दी से बीतेंगे। एक धारा से चट्टाने
कब कटती है। हमको एक दरिया बनकर बहना होगा। जीतना है तो मिलजुल कर रहना होगा। जीतना है तो मिलजुल कर रहना होगा। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, जय हिंद। मैं अभी अनुरोध करूंगा राजनीतिक प्रस्ताव पे जो प्रस्ताव रखा था, हमारे कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्प मोइली जी आए, आपको संबोधित करें। Sri Venugopal ji, our leaders on the dais, and also the leaders in the venue, all AICC delegates, I have the pleasure of drafting the political resolution. A number of people have spoken on that. I don't want to give a prolonged speech, but I will only give some highlights which has been spoken out in this resolution. We have mentioned the great advantage Congress and also India obtained because of the 4,000 kilometers of Bharat Jodo Yatra conducted by our beloved leader Rahul ji. This was a great thing to happen, which was quite essential in view of the divisive politics practiced by the BJP. And I must tell you that we will carry on the message of the Bharat Jodo Yatra with conviction and also with the necessary follow-up step, which will consolidate the national ethos arisen out of this great yatra. We stand for patriotism. That was what was practiced in the during the freedom struggle, and even we nurtured the echo of patriotism even after gaining independence. I don't know what kind of culture the BJP is nurturing today. Definitely it is not Indian culture. I happen to be a poet. I've written 3 epic poems, all of them got national awards. But when I go through the characters, particularly the character we adore, Sri Ramachandra, or any, the latest epic poem I wrote on Bahubali, the Jain, that biggest idol. None of these characters around, even any one of the leaders of the BJP come around that. I made a lot of research, but we always find the devils and devils in the form of the BJP leaders. We should also know that, I read Bhagavad Gita every day. Today I happen to read the 16th chapter of Bhagavad Gita. 16th, I advise all of you to go through this. I also advise the BJP leaders to go through this. Because there in the second sloka, they propagate ahimsa principle. What they are practicing is totally against this. The violence, hate, crime, they perpetuate on this. They think that they can continue to rule this country with those kind of violence and the crime. Even the 4th sloka in 16th chapter, it says, arrogance, the anger, and hurting the others. It amounts to ajnana. What is these people are doing?
It is never the culture of India at all. Even 14th sloka, he says that I kill people and I kill rest of the people also, and I independently rule and I enjoy the fruits of my victory, and I am the powerful man. These are all called the Asura Buddhi. That means it's not really the sattvic gunas of any individual. So one should be conscious that we are fighting against them. That is why we have propagated that every one of the congressmen should be a satyagrahi. Satyagrahi to fight against these evils, devils, and also against the crime which has been created by them. And one more thing which I would like to really present here is particularly, refer to any saints here. Guru Nanak, I remind you that he wrote poems for the humanity, for the existence of the humanity. And who was singing that? Yes, another Muslim singer, Mardana, was singing the songs of Guru Nanak. And the borders of Bharat, only Veda, Upanishads, they say the Bharat means the territory between Himalaya and Kanyakumari. The people living are Bharatiyas. What is the definition they are giving? They are giving a narrower definition that there is no place for the people, particularly whether it is a Muslim, Christian, according to the definition of the Bharatiya, there is no place at all. We need to fight against these divisive forces. And one should understand that India was never ruled, entire India was never ruled by any king. Harshavardhana ruled, a portion of Uttara Bharat, North Bharat. And the Pulakesi, the great of Karnataka, he ruled only Dakshina Bharat. And Mughals have ruled only the certain parts and units of India. It was never ruled, but Shankaracharya, he defined by his going around from north to south the entire Bharat. And ultimately Mahatma Gandhi, who has really defined Bharat and said, this is the map of Bharat. And but for the freedom struggle by the Indian National Congress, but for the fight of Mahatma Gandhi and his Padayatras, there would not be the India which we see today. It is the Indian National Congress. Even after coming back to power, they took over those 500 princely kingdoms. We took over and integrated the country. This is the concept. Indian concept itself is provided by Indian National Congress in the spirit of our Vedas, our cultural heritage. And this BJP would like to divide it. And Bharat Jodo Yatra is definitely to perpetuate, nurture that the unity of India and redefine the Indian territory when these people want to divide this country by means of their divisive activities and also by the hatred politics. So we have to condemn, and we shall bring about a law or the constitution amendment to punish the hate crimes. We need to work on that. We have definitely given a roadmap for Congress to come back, Congress-led government to come back in 2024. We shall take the initiative, unite all secular and socialist forces, come along with the Congress to re-establish
the Congress-led government in the country. So I would like you to give your approval to this political resolution, which is going to be a landmark in the history of India and landmark to spread love and also affection among the people of all communities. And we should know that there are 19 or 20 crores of minority people, Muslims, Christians, Parsis and many other communities. Do you conceive an India by deleting 20 crores of people by your hate and crime? And Congress will never allow this to happen, and we will fight as Satyagrahi as a unit Congress party against all these crimes of hatred and also vendetta politics. We will fight it, we shall fight it, we will be the champions to do it. Thank you very much. Jai Hind. एक बार जरा जोर से हो जाए, और जोर से, जोड़ो जोड़ो। अभी पॉलिटिकल रेजोल्यूशन को हम पास करेंगे और मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, मौली जी ने बहुत अच्छी तरह से सभी बातों को आपके सामने रखा है। राजनीतिक प्रस्ताव को हम सब पास करने के लिए अपना हाथ खड़ा करके समर्थन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय पी चिदंबरम जी को कि आए और जो इकोनॉमिक रेजोल्यूशन है, आर्थिक प्रस्ताव, उसकी चर्चा हुई है, उसके समापन की बात हमारे सीनियर नेता पी चिदंबरम जी रखेंगे। Respected Congress President Shri Mallikarjun Kharge ji, former Congress President respected Srimati Sonia ji, respected Congress President Shri Rahul Gandhi ji, members of the Steering Committee, members of the All India Congress Committee, my other friends from all over India who are PCC members and delegates, our dear friends in Raipur, Chhattisgarh, I greet you all on this occasion and thank the people of Chhattisgarh, the Congress party in Chhattisgarh and the workers of Chhattisgarh for the warm reception they have given us since day before yesterday. The resolution on the economy was moved by my good friend Shri Kamal Nath and was seconded by Srimati Supriya Srinathar. I am here to make the concluding remarks and to wind up the discussion on the resolution. I shall be very brief. I'm sure all of you have read the resolution, the thrust of the resolution, and what is the message that is sought to be conveyed to the people of India. It's difficult to summarize a short message, but I'll try to do it. The message that we must convey to India is, it is the Congress party in 1991 which ushered in an open, competitive and liberal economy. The seeds of a liberalized economy were sowed in 1984 under the Prime Ministership of Shri Rajiv Gandhi. Not many remember the election manifesto
of the 1989 election, and even more so of the 1991 election. The seeds of an open, competitive and liberal economy were sowed in those two manifestos. Unfortunately, Shri Rajiv Gandhi passed away. And then when we came back to power under Shri Narasimha Rao, Dr. Manmohan Singh as Finance Minister took upon himself the bold action of opening up India's economy. The results of an open, competitive and liberal economy are known to everybody. According to the United Nations Development Fund, 27 crore people were lifted out of poverty. In 10 years, between 1991 and 2001, we doubled the GDP. And again, in 10 years, we doubled it again. All the new champions of industry that you read about in the newspapers, you see, all the new champions in information technology, steel, power, automobiles, all these new champions were created in the years in which the Congress was in power. We gave birth to the new middle class. Millions and millions of families became the middle class. Thousands and thousands of entrepreneurs started their businesses. We created enormous wealth. As I said, we doubled the GDP once and we doubled it again. We created enormous wealth. But this is the lesson we have to learn. The wealth accrued to a small section of the people. There's no harm in admitting that. The reality is, the bottom 50% of India has only 13% of the national income. The bottom 50% of India has only 3% of the nation's wealth. While we created wealth, the wealth went to the top 50% of India. It did not go to the bottom 50% of India. But that is the history of all countries which move from a low stage of development to an advanced stage of development. There's no shame in that. That is a historical fact. We can admit it. The question now is, how do we go forward? Just as we embraced an open, competitive and liberal economy, I submit that the time has come for Congress Party to declare boldly and in a forthright manner that our next task is to lift the bottom 50% of the people of India out of poverty. 22.4 crore people of India are in abject poverty. While there is great wealth in one side, there is also abject poverty in another. We must openly, freely, without any inhibition, adopt the 50% at the bottom of the population as our constituency and say the Congress Party's task is to lift the bottom 50%. The bottom 50% can only be lifted out of poverty and made into a middle class, and ours becoming a middle income economy if we reset our economic policy. The first set of economic policy created the conditions for faster growth. The second set of economic policy that we must begin today, the reset of economic policy that we begin today, must clearly aim at distributing wealth, ensuring that not only wealth is created, but work is created and equality and equity are created.
We are a very unequal society. We are unequal in every manner. We are so unequal that in the global hunger index, our rank today is 101 to 107 out of 123 countries. In the global gender index, we are 135 in the rank of countries. This is perhaps the fastest developing country which is most unequal. And this inequality will lead to political instability as well as social strife. So just as in the first 20 years, we embraced an open, liberal, competitive economy, we must determine from today that we will embrace an economic policies which will redistribute wealth, create work, create wealth, and make sure that it is distributed more equally and equitably among the people of India. Just as the top 50% enjoyed the benefits of our economic policies, the bottom 50% must enjoy the benefits of our economic policies. We must not hesitate, we must not flinch, we must not be afraid to openly declare that from this day onwards, the Congress's economic policies will create work, will create wealth, but will ensure that it is equitably distributed so that the bottom 50% of the population will get the most of the benefits over the next 10-20 years. The BJP will not do that. The BJP believes in cronyism. The BJP believes in concentrating wealth in a few hands. The BJP believes in creating monopolies. We must determine that this concentration of wealth will be broken. Monopolies will be broken. Cronyism will be ended. We must get rid of cronyism, monopolies, and concentration of wealth and ensure the vast majority of the people of India enjoy these benefits. If I go into various statistics and data, you will see how the poor people live. We know how the poor people live. We try to ignore them. We close our eyes when we see poverty. There is poverty in the streets. There's poverty in a person begging on the streets. There's poverty in street children. There are poverty in families living under bridges. There is poverty in our villages where they do not have a roof over their head. There's poverty in 30 crore daily casual labor in this country. While a large number has become prosperous and have become middle class, an equally large number is poor. While there is this 50%, which is 70 crore, and that number blinds us. But remember, there is another 70 crore which is in poverty. Another 70 crore which are denied the benefits. Just as we embrace the top 50% have benefited from our 50%, the top 50% have benefited from our policy, let us decide to reset our policy so that the bottom 50% will benefit over the next 10, 20 years. And that is the thrust of this resolution. I'm not going into the details of this resolution. You have read it. You will read it in tomorrow's newspapers. You will hear it about in channels. You will hear it in discussions. But the thrust of our policy, the thrust of our message, the direction of our message is that the Congress is determined, just as our policies lifted the lives and the livelihoods and made it better for the top 50%, we will henceforth focus on the bottom 50%. I ask you to support this resolution. At the end of my intervention, I will ask you to vote for the resolution, and I hope all of you unanimously and resoundingly vote to pass this resolution. Thank you. Those in favor of the resolution may kindly raise their hands. Those who are against the resolution may raise their hands. The resolution is passed. Thank you very much.
कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब पहुंचने वाले हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, बड़े प्यार से आप लोगों ने सभी बातें सुनी हैं। एक अनुरोध यह भी है कि इसी पंडाल के बाहर बहुत अच्छी प्रदर्शनी एग्जीबिशन लगे हुए हैं, आप ज़रूर उसको देखिएगा। हमारी धरोहर, हमारा इतिहास, बांग्लादेश वॉर, ये सारी चीज़ें वहाँ लगी है, उसको ज़रूर देखिए। और इस सेशन के ख़त्म होने के बाद कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक झांकियाँ भी है, उसे हम सब मिलके देखेंगे। और अब आज के दिन का जो आखिरी रेजोल्यूशन, आखिरी प्रस्ताव, इंटरनेशनल अफेयर, अंतर्राष्ट्रीय बाबतें, उसके बारे में जो चर्चाएं हुई हैं उनका समापन और उसके ऊपर वोटिंग करवाने के लिए हमारे आदरणीय नेता जनाब सलमान खुर्शीद जी से मैं गुजारिश करूंगा कि आइए सलमान भाई और अपनी बात रखिए। माननीय महासचिव महोदय वेणुगोपाल जी, अभी आदरणीय अध्यक्ष महोदय भी आने वाले हैं। हमारी प्रेरणा, पार्टी की प्रेरणा और हमारी मार्गदर्शक माननीय सोनिया जी आज दिन भर आप लोगों के साथ रही हैं। उनकी प्रेरणा से आपके सामने कुछ बातें रखने का मुझे ये अवसर मिला है, मैं इसके लिए आभारी हूँ। माननीय राहुल जी ने बहुत विदेश नीति में बहुत रुचि दिखाई है और उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है, हम उसका भी आभार प्रकट कर। मैं आप सभी महान भाव को सबसे पहले नमन करता हूं, आदाब करता हूं, सत श्री अकाल कहता हूं और आप सबसे निवेदन ये करता हूं कि थोड़ा सा विचार करें। हमसे पहले बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव आपके सामने आए, राजनीतिक प्रस्ताव मोइली जी ने, जिस पर आपके सामने अपनी बात रखी। चिदम्बरम जी ने जो इकोनॉमिक प्रस्ताव आया था, आर्थिक प्रस्ताव आया था, उस पर अपनी बात रखी। दोनों विद्वान हैं, अपने अपने क्षेत्र के विद्वान हैं और उस पर आप लोगों ने विचार किया, उस पर आपने अपना मत प्रस्तुत किया। कभी कभी ऐसा लगता है कि विदेश नीति के संबंध में शायद उतना कोई महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखने का अवसर कम मिलता है। रोजमर्रा की राजनीति में अर्थव्यवस्था पर, राजनीतिक मुद्दों पर ज़्यादा रुचि लोग लिया करते हैं, लेकिन आप पूरे दिन हम लोगों की बात सुनने के बाद आप लोग इतने सुकून से, इत्मीनान से यहाँ बैठे हैं। मैं इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि हम समझने का ये प्रयास करें कि आखिर विदेश नीति का कितना बड़ा महत्व आज हमारी जिंदगी में है। चाहे हम राजनीतिक बात कर रहे हों या फिर हम अर्थव्यवस्था के संबंध में बात कर रहे हों, हम विश्व से अलग होकर बात नहीं कर सकते। आज जो विश्व में होता है उसका कल भारत पर प्रभाव पड़ता है और भारत इतना महत्वपूर्ण अब देश है अर्थव्यवस्था को लेकर भी कि आज जो भारत में होगा उसका कहीं ना कहीं असर पूरे विश्व में जाकर पहुंचता है। और फिर हमारी कड़ियां सब जगह जुड़ी हैं। आप जानते हैं प्रवासी भारतीय कितना महत्वपूर्ण उनका योगदान पूरे विश्व में अब है। जगह जगह बहुत उच्च स्थानों पर वो पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं वो सहानुभूति अपने देश के साथ रखते हैं, जिस देश में वो पैदा हुए या जिस देश में उनके पूर्वज पैदा हुए। हमारे भारतवर्ष के लिए कुछ सहानुभूति वो भी रखते हैं और इसलिए हम जो करते हैं, हमारे देश में जो होता है
उसको वो लोग बड़े गौर से देखते हैं और हमारे यहाँ कार्य प्रणाली को देखकर वो भी अपने निर्णय लेते हैं और वो हमारे लिए सहानुभूति बढ़ाते हैं या घट जाती है, ऐसा देखने को मिलता है। आज एक प्रश्न आया, बहुत दिन से हमारे भारतवर्ष में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से अंकुश लगाने के प्रयास हो रहे थे कि मीडिया पर अंकुश लगाया जाए, मीडिया पर स्वतः अपनी बात कहने का जो अधिकार है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जाए। ये चलता रहा, बहुत दिन से चलता था, हम लोग इसकी शिकायत करते थे, आप लोग निकलकर सड़कों